ईरान ने अपनी भौगोलिक स्थिति को हथियार बनाकर इस जंग में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हाहाकार और मचेगा। ईरान ने कच्चे तेल को $200 प्रति बैरल के पार ले जाने की धमकी दे रखी है। इसीलिए अमेरिका सहयोगियों से अपील कर रहा है कि हॉर्मुज से बारूदी सुरंग हटाने के लिए सभी देश एकजुट होकर ईरान पर हमला करें। लेकिन जवाब में नेटो और यूरोपीय देशों ने ट्रंप को सीधे नो कह दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने साफ कह दिया है, ये हमारा युद्ध नहीं है। अमेरिका ने जिस सैन्य गठबंधन को बनाया, जो उसके इशारे पर चलता रहा, उसने भी ईरान युद्ध में साथ देने से मना कर दिया है। इससे बढ़ के ट्रंप ने नेटो को भी फटकार लगाई है। He's lucky I exist. That's all I can say. Because if you're going to allow countries that are sick and demented, and they are demented, to have nuclear weapons, everybody in the whole world should be very thankful. And I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this group of people feels the way we do. Because if a country like Iran was allowed to have the power of a nuclear weapon, if we didn't stop them, I stopped them twice. I stopped them my first term when I terminated the Iran nuclear deal, which was Barack Obama's deal. It was one of the, maybe the worst deal I've ever seen. It gave everything to Iran, including billions of dollars in green cash. I don't mean cash, I mean green cash flown over by airplanes. I can't to this day believe that was allowed to happen. नेटो एक डिफेंसिव अलायंस है और उसका आर्टिकल 5 सिर्फ तब लागू होता है जब किसी सदस्य पर सीधा हमला हो। ईरान युद्ध को यूरोप तक ऑफेंसिव ऑपरेशन मान रहा है, जिसमें उन्हें पहले शामिल नहीं किया गया। यानी साफ संदेश, जिस जंग में राय नहीं ली, उसमें साथ भी नहीं मिलेगा। लेकिन नेटो चीफ ईरान पर ट्रंप के हमलों को जायज ठहराने से खुद को नहीं रोक पा रहे हैं। Crucial for Iran not to get its hands on a nuclear capability, a ballistic missile capability, and what the US is doing at the moment is degrading that capability of Iran, and I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself. A nuclear Iran. खाड़ी युद्ध ने एक नई हकीकत सामने रख दी है, वो ये कि अमेरिका अकेले लड़ सकता है, लेकिन हर लड़ाई में नेटो उसे साथ देगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने सिर्फ तेल की सप्लाई नहीं रोकी, बल्कि नेटो के भीतर छुपी दरारों को भी उजागर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है, अगर ये जंग लंबी चली तो क्या रिश्तों की ये दरार खाई में तब्दील नहीं हो जाएगी? और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि हॉर्मुज का विकल्प अब निकालना ही होगा। The death cult in Iran is trying to blackmail the world by closing a key international maritime route, the Straits of Hormuz. It won't work. Israel is helping in its own way, and intel and other means, the American effort to open the Straits of Hormuz rather. But I want to ask you to imagine how the Ayatollah regime would be able to blackmail the entire world if they had ballistic missiles with nuclear warheads. Just imagine what they would do. Look at what they're doing now and imagine what they would do if they had ballistic missiles, international range ballistic missiles, and nuclear tipped warheads. Just imagine what a great threat that would be. So today Israel and the United States are protecting America, Israel, the entire Middle East, but I venture to say the entire world.
और ऐसे में कतर ने दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर मिसाइल, कतर के इस एलएनजी प्लांट पर मिसाइल दागी गई और इस हमले के बाद ट्रंप अब गुस्से में है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कतर पर दोबारा हमला हुआ तो वे ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को उड़ा देंगे। धरती के इस हिस्से में हर तरफ आग है, काला धुआं है और सिर्फ बर्बादी है। युद्ध का फैसला अब हथियार नहीं, ऑयल फील्ड की तबाही से होगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि ईरान का एक भी तेल का कुआं अब सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप के दोस्तों के तेल के मैदान को वो राख कर डालेगा। खाड़ी में अमेरिका के दोस्त जिसके पास तेल है, गैस है, वो अब ईरान का क्रोध झेल रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर फट रहे हैं ईरान के ड्रोन बम। कतर की सबसे बड़ी ऑयल सिटी रास लफान पर ईरान के मिसाइलों का तूफान। कुवैत के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी मीना अल अहमदी में शाहिद ड्रोन के धमाके। संयुक्त अरब अमीरात के बाब और हबशान गैस प्लांट पर भयानक हमला। ईरान दुश्मनी निभा रहा है अमेरिका से, इजराइल से, इन दोनों देशों के दोस्तों से। ईरान जमकर दुश्मनी निभा रहा है। ईरान ने सुपर पावर की सबसे कमजोर नस दबा दी है। ईरान ने पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी के दुश्मनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा, जैसे इजराइल को ईरान ने दहला रखा है। तेल अवीव पर फट रही ईरान की मिसाइलों ने कोहराम मचा रखा है। तेल अवीव पर ईरान के साथ हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी बमबारी शुरू कर दी है। गुजरे 7 घंटे में इजराइल पर ईरान ने 8 राउंड में मिसाइलें फायर की है। ईरान की घनघोर पिटाई से घबराए इजराइल को बचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने जंगी बेड़े को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। यूएसएस गेराल्ड आर की करंट लोकेशन लाल सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर है। अमेरिका की मुश्किल ये है कि वो इजराइल को गार्ड करता है तो ईरान खाड़ी देशों को दहलाने लगता है। जब सुपर पावर खाड़ी देशों का कवच बन रहा है तो ईरान तुर्की पर टूट पड़ता है। हालांकि फिलहाल युद्ध का फोकस एनर्जी सेंटरों को तबाह करने पर लगा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने की है। इजराइल ने ट्रंप की परमिशन से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को मिसाइलों से पाट दिया है। ईरान की साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये फारस की खाड़ी में 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ पार्स गैस प्लांट में करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है। साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा कतर की तरफ है, जिसे सबसे पहले 1971 में खोजा गया था।